Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. In A.R. Antule versus R.S. Nayak, the judiciary is considered state when it is exercising which of the following powers? Judicial powers, rule-making authority, legislative powers और executive powers. A.R. अंतुले बनाम R.S. नायक मामले में न्यायपालिका को राज्य माना जाता है जब वह निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर रही हो? न्यायिक शक्तियां, नियम बनाने वाला प्राधिकारी, विधायी शक्तियां या फिर कार्यकारी शक्तियां. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रूल मेकिंग अथॉरिटी. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नियम बनाने वाला प्राधिकारी. In A.R. Antule versus R.S. Nayak 1988 and N.S. Mirajkar versus State of Maharashtra 1966, it was held that the judiciary is considered state when exercising rule-making authority, but not when performing its judicial functions. However, in Ratilal versus State of Bombay 1952, the judiciary was ruled not to be state under Article 12. A.R. अंतुले बनाम R.S. नायक 1988 और N.S. मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 1966 में यह माना गया कि न्यायपालिका को नियम बनाने वाला प्राधिकारी का प्रयोग करते समय राज्य माना जाता है, लेकिन अपने न्यायिक कार्यों को निष्पादित करते समय नहीं. हालांकि रतिलाल बनाम बॉम्बे राज्य 1952 में न्यायपालिका को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ BNSS mandates that an arrested person must be brought before a magistrate within 24 hours? Section 48, Section 58, Section 68 और Section 78. BNSS की कौन सी धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य है? धारा 48, धारा 58, धारा 68 या फिर धारा 78? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 58. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 58. As per Section 58 of BNSS, a person arrested must be taken before the magistrate within 24 hours of the arrest. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under Section 187, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court, whether having jurisdiction or not. BNSS की धारा 58 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए. कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस मामले की सभी परिस्थितियों में युक्तियुक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखेगा और ऐसी अवधि धारा 187 के अधीन मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, चाहे क्षेत्राधिकार हो या ना हो, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगी. Next question, which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996 defines arbitral tribunal? Section 2A, Section 2B, Section 2C और Section 2D. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण को परिभाषित करती है? धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C या फिर धारा 2D? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 2C. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 2C. Recently, in the case of Palm Developments Private Limited versus State of West Bengal and another, the Supreme Court held that both the arbitral tribunal and the court are obligated to scrutinize the contract as it forms the foundation of the legal relationship. Section 2, subsection C of the Arbitration and Conciliation Act 1996 provides that arbitral tribunal means a sole arbitrator or a panel of arbitrators. An arbitrator is a neutral third party that acts as a judge in arbitration proceedings. हाल ही में पाम डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण और न्यायालय दोनों ही अनुबंध की जांच करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि यह कानूनी संबंध की नींव बनाता है.
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2C में प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अर्थ एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का पैनल है। मध्यस्थ एक तटस्थ तृतीय पक्ष होता है जो मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड? आर्टिकल 320, आर्टिकल 323A, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 124। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 124? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 323A। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 323A। Recently, in the matter of Raj Karan Singh and others versus Union of India and others case, the Supreme Court observed that employees performing duties like regular government staff should not be denied pensionary benefits solely due to their temporary status. The Central Administrative Tribunal is one such tribunal that deals specifically with the recruitment and service conditions of public servants. The Central Administrative Tribunal was established under Article 323A of the Indian Constitution. हाल ही में राजकरण सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्य करने वाले कर्मचारियों को केवल उनकी अस्थायी स्थिति के कारण पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक ऐसा न्यायाधिकरण है जो विशेष रूप से लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी। लास्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 to a high court from a decree or order is dash 120 days, 90 days, 60 days और 30 days। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत किसी भी डिक्री या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की परिसीमा अवधि डैश है 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन या फिर 30 दिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 90 डेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 90 दिन। As per the Article 116 of Limitation Act, the period of limitation for preferring an appeal under the Code of Civil Procedure 1908 to a High Court from any decree or order is 90 days from the date of decree or order. सीमा अधिनियम की धारा 116 के अनुसार किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अपील करने की सीमा अवधि डिक्री या आदेश की तिथि से 90 दिन है। Now is the time for practice question. The provisions regarding effect of non-registration are found in which of these sections of the Indian Partnership Act 1932? Section 69, Section 59, Section 68 और none of these options. गैर पंजीकरण के प्रभाव से संबंधित प्रावधान भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में पाए जाते हैं? धारा 69, धारा 59, धारा 68 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for more such updates. इसका उत्तर हमें comment section में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। Dear viewers, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।